बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to Chemistry with Mudassar Tanoli. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassar Tanoli. Dear students, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। Dear students, in today's lecture I will discuss about the substitution reaction in organic compounds. आज का जो लेक्चर है इसमें आपके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करूंगा। व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन मीन्स replacement of one group by another group. Substitution means replacement of one group by another group. The term substrate is used for that reactant molecule in which chemical change occur. The term substrate is used for that reactant molecule in which chemical change occur. For example, in the replacement of hydrogen atom of methane molecule by a chlorine atom. Dear students, केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं कि CH4 when react with chlorine it will form methyl chloride. अब इस रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन को क्लोरीन जो है वो रिप्लेस कर रहा है। CH4 के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके CH4 से वन हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और उस हाइड्रोजन की जगह पे आके अटैच हो रहा है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे को रिप्लेस करे तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल CH4 प्लस Cl, क्लोरीन ने इस रिएक्शन में क्या किया कि CH4 से वन हाइड्रोजन को रिमूव किया और वन हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है उसकी जगह पे क्लोरीन एटम आके अटैच हो गया है और CH4 मीथेन और क्लोरीन से मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन एटम की फॉर्मेशन हुई है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करे ऐसे रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर ग्रुप। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे CH4 जो है इसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। Cl क्लोरीन जो है इसको अटैकिंग ग्रुप कहा जाता है। CH3Cl जो है इसको प्रोडक्ट कहा जाता है और हाइड्रोजन जो है इसको लीविंग ग्रुप। Here CH4 is called substrate, Cl is called attacking group, CH3Cl is called product and H is called leaving group. In substitution reactions, the attacking group may be nucleophile, electrophile or free radical. Dear student, substitution reaction जो है उसमें attacking group जो है वो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या फ्री रेडिकल हो सकता है। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 1 होमोलिटिक फिशन और होमोलिसिस। नंबर 2 हेट्रोलिसिस और हेट्रोलिटिक फिशन। Homolytic fission or homolysis, heterolytic fission or heterolysis. Dear students, mechanism of substitution reaction. The mechanism of free radical reaction may be homolytic or heterolytic depending on the nature of the process. Bond breaking is an endothermic process.
if sufficient amount of energy is available, a covalent bond breaks in two ways. Number one, homolytic fission or homolysis. Number two, heterolytic fission or heterolysis. First of all, I will discuss about the homolytic fission or homolysis. What is homolysis or homolytic fission? Homolytic fission or homolysis may be defined as if a chemical bond breaks in such a way that each of the two bonded atoms receive one electron from the bond is called homolysis. If a chemical bond breaks in such a way that each of the two bonded atoms receive one electron from the bond is called homolysis or homolytic fission. That is, division occur equally between the products. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग हो और टू बॉन्डेड एटम जो हैं वो वन वन इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव करें, ऐसे केमिकल रिएक्शन को होमोलिटिक फिशन या होमोलिसिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, when two similar atom and heat is provided to two similar atom like chlorine, the product A and A dot and A dot are formed are called free radical, which are electrically neutral but each one unpaired electron. Energy will be required for the fission, which may be supplied in the form of heat, thermolysis, or by light photolysis. If a chemical bond breaks in such a way that each of the two bonded atoms receive one electron from the bond is called homolysis. Dear students, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग के बाद दोनों एटम जो हैं जो आपस में बॉन्डेड थे वो वन वन इलेक्ट्रॉन रिसीव करें, ऐसे केमिकल रिएक्शन को होमोलिटिक फिशन या होमोलिसिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, Cl इंटू Cl, जब क्लोरीन के टू एटम जो हैं उनको हीट किया जाता है तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जब किसी एटम के ऊपर डॉट का साइन हो तो इसका मतलब होता है फ्री रेडिकल। फॉर एग्जांपल, A प्लस A, और इनके ऊपर अगर डॉट हैं तो ये क्या हैं? फ्री रेडिकल। जब किसी एटम के ऊपर जो है डॉट का साइन हो, फॉर एग्जांपल क्लोरीन की सिंबल होती है Cl, तो क्लोरीन के टॉप पे अगर डॉट का निशान हो तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग के बाद दोनों बॉन्डेड एटम जो हैं वो वन वन इलेक्ट्रॉन रिसीव करें, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड होमोलिटिक फिशन और होमोलिसिस। व्हाट इज होमोलिसिस और होमोलिटिक फिशन? If a chemical bond breaks in such a way that each of the two bonded atoms receive one electron from the bond is called homolysis. That is, division occur equally between the products. That is, division occurs equally between the products. For example, A into A plus heat will form A dot plus A dot. Here the products A dot and A dot are called free radicals, which are electrically neutral but each have one unpaired electron. Energy will be required for the fission, which may be supplied in the form of heat, thermolysis, or by light called photolysis. When heat is provided to two similar atoms of chlorine joined with each other, it will form chlorine 2-chlorine free radical. In halogen and peroxides, bond breaking occur through the process of homolysis. हेलोजेंस और पेरोक्साइड जो हैं स्टूडेंट्स, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो होमोलिसिस के ज़रिए होती है। टू
सेम एटम जो हैं वो अगर ब्रेक हों तो ऐसे प्रोसेस को होमोलिसिस कहा जाता है। होमो मीन सेम। इन शॉर्ट वर्ड, द ब्रेकिंग ऑफ सेम और same type of atom is called homolysis. The next is the heterolytic fission or heterolysis. What is heterolytic fission or heterolysis? If a chemical bond breaks in such a way that one of the bonded atoms gain both of the bonded electron is called heterolysis or ionic fission. Dear students, heterolytic fission or heterolysis may be defined as if a chemical bond breaks in such a way that one of the bonded atom gain both of the bonded electron is called heterolysis or ionic fission. Heterolytic fission are also called ionic fission. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें वन ऑफ द बॉन्डेड एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करें, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हेटेरोलिटिक फिशन और हेटेरोलिसिस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब दो डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो और टू बॉन्डेड एटम जो हैं उसमें से एक एटम जो है वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको गेन करे, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हेटेरोलिटिक फिशन या हेटेरोलिसिस कहा जाता है। होमोलिटिक फिशन जो है उसमें सेम टाइप के जो एटम्स होते हैं उनकी ब्रेकिंग होती है, और हेटेरोलिटिक फिशन जो होता है उसमें टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। जनरली तौर पे हेटेरोलिटिक फिशन या हेटेरोलिसिस को ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए इज़ द वन एटम एंड बी इज़ द अनदर एटम। ए जो है उसको किसी पॉजिटिव आयन जो है उसको ए से शो किया जाता है और नेगेटिव आयन जो है उसको बी से शो किया जाता है। ए इज़ द पॉजिटिव आयन एंड बी इज़ द नेगेटिव आयन। द एटम विद हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्ट बोथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हेटेरोलिटिक फिशन में दो एटम जो होते हैं उसमें एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द एरो इंडिकेट दैट द सिग्मा इलेक्ट्रॉन लॉस बाई ए एंड गेन बाई बी, दस टू आयंस आर फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, A into B will form a positive ion plus a negative ion. Here A positive represent positive cation plus A negative represent anion. Such type of chemical reaction in which after the bond breaking one of the bonded atoms gain both of the bonded electron is called heterolysis or ionic fission. The atom with higher value of electronegativity attract both the bonding electron. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें टू डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकिंग हो और ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डेड उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसको हेटेरोलिटिक फिशन और हेटेरोलिसिस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, होमोलिटिक फिशन का मतलब होता है सेम टाइप के जो एटम्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड का ब्रेक होना, और हेटेरोलिटिक फिशन का मतलब होता है दो डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकिंग। होमोलिटिक फिशन के दौरान दोनों एटम जो है वो वन वन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और हेटेरोलिटिक फिशन के दौरान दोनों जो बॉन्डेड एटम होते हैं उसमें जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो जो है दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हेटेरोलिटिक फिशन का मतलब होता है टू डिफरेंट एटम का ब्रेक होना। हेटेरोलिटिक फिशन, हेटेरो मीन डिफरेंट एंड लाइसिस मीन स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग। जब दो डिफरेंट एटम की स्प्लिटिंग होती है तो वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो एटम जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उस पर नेगेटिव साइन होता है और वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो एटम
हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं उस पर पॉजिटिव साइन होता है। और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एटम इलेक्ट्रॉनों को गेन करे उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट्स, होमोलिटिक फिशन और होमोलिसिस या हेट्रोलिटिक फिशन या हेट्रोलिसिस जो हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग के टू वेज हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, इसके जो है टू वेज हैं। होमोलिटिक फिशन और होमोलिसिस एंड हेट्रोलिटिक फिशन और हेट्रोलिसिस। होमोलिटिक फिशन मीन द ब्रेकिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। The bond between the two same type of atoms breaking is called homolytic fission, and the bond between two different atom breaking is called heterolytic fission or heterolysis. अब dear students, homolysis और उसके बाद जो है heterolysis की जो है यहाँ पे एग्जांपल जो है दी गई हैं। A into A प्लस हीट। जब टू सेम टाइप के एटम ए और ए जो है ये सेम टाइप के एटम को शो कर रहे हैं, इनको जब हीट प्रोवाइड की गई है तो ये जो एटम हैं ये एक दूसरे से अलग हो गए हैं और फ्री रेडिकल बन गए हैं। एस स्टार प्लस एस स्टार मीन फ्री रेडिकल, वेयर ए स्टार एंड ए स्टार इज़ द फ्री रेडिकल्स। तो जब दो एटमों के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकिंग हो और जब दो एटमों को हीट प्रोवाइड की जाए तो हीट प्रोवाइड करने के बाद उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसकी ब्रेकिंग हो जाती है और दोनों एटम जो है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्री रेडिकल किसे कहा जाता है? ऐसा एटम जिसके पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको फ्री रेडिकल कहा जाता है। नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोलिसिस। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप स्टूडेंट्स देखें कि दो डिफरेंट एटम, एक को ए से रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरे को बी से। इनके दरमियान जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एटम पे नेगेटिव चार्ज है। थैंक यू फॉर वाचिंग।